السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ آج ہم پہنچے ہیں پی پی 212 میں اور آج ہم جانیں گے یہاں پر عوام کے مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ شہریوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی پی 212 میں جو مسائل ہیں ان کے حل کے حوالے سے اب تک کیا حکومت کی جانب سے ورکنگ کی گئی ہے۔ آج اس کے ساتھ ساتھ عوام سے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو وہاں پر جو صفائی کے مسائل ہیں، واٹر سپلائی کے مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سڑکوں کے یہاں پر مسائل تھے کیا وہ حل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اور ہم منتخب نمائندوں سے بھی جو یہاں کے نمائندے ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کب عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حلقے کی عوام اور اس وقت ہم موجود ہیں جو یوسی ہے جکھر پور، وہاں موجود ہیں اور یہاں پر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شہری کیا کہتے ہیں۔ اچھا، صورتحال بتائے گا جکھر پور کی صورتحال کیا ہے؟ پی پی 212 کی بات کریں تو شہری اور دیہی حلقے میں یہ علاقوں میں یہ ڈیوائیڈ ہے حلقہ، اور جو منتخب نمائندے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسائل حل کیے جا رہے ہیں، عوام کی جو امیدیں ہیں ان پر پورا اترنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوسی 70 جکڑ پور، جسے عرف عام میں مل پھاٹک بھی کہتے ہیں، ایک بہت بڑی آبادی پہ مشتمل ہے۔ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں دکانیں موجود ہیں۔ اس علاقے کے سراؤنڈنگ کے جتنے بھی علاقے لگتے ہیں، قصبے لگتے ہیں، دیہات لگتے ہیں، وہ سب لوگ یہاں پہ خریداری کرنے کے لیے اس علاقے میں آتے ہیں۔ آپ میں تجارتی علاقہ ہے یہاں پر؟ بالکل تجارتی علاقہ ہے۔ یہاں پہ ایک ایکڑ بھی ایسا زرعی رقبہ نہیں ہے جہاں پہ زراعت ہو، مگر بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے رائٹ پہ اب آپ دیکھیں، لیفٹ پہ دیکھیں، ٹبہ مسعود پور میٹروپولیٹن سٹی میں ڈال دیا گیا۔ ہمارے رائٹ پہ دیکھیں یونین کونسل مظفر آباد کو میٹروپولیٹن سٹی میں ڈال دیا گیا۔ ہمارے اس سائڈ پہ دیکھیں آپ تو یہ والی یوسی 75 کو اٹھا کے شہری حلقے میں ڈال دیا گیا۔ میرے آپ اس سائڈ پہ دیکھیں اس یوسی کو بھی آپ نے اٹھا کے شہر میں ڈال دیا گیا۔ یہ جو 100% کاروباری لوگوں کا یہ علاقہ ہے، یہاں پہ ایک ایکڑ بھی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ علاقہ جناب والا ایک ایکڑ بھی یہاں پہ زرعی نہیں ہے۔ اور آپ نے کس حوالے سے، میں کمشنر ملتان اور انتظامیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کس حوالے سے ہماری یونین کونسل کو ضلع کونسل میں ڈال کے ہمارے ساتھ ظلم کیا؟ تحصیل کونسل میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے سے یہاں پر جو مسائل ہیں، جو شہری آبادی میں مسائل حل ہوتے ہیں وہ حل نہیں کیے جائیں گے آپ سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے جو بیوروکریسی ہے ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر اپنے دفتروں میں اسی دفتروں میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے تو ایسے ہی ہوگا۔ اگر آپ میرٹ پہ آئیں دیکھیں، اور اگر یہ علاقہ ضلع کونسل میں بنتا ہے یا تحصیل کونسل میں بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں پھر ملتان کی کوئی یونین کونسل بھی شہری حدود میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ خدا کا خوف کھائیں، اپنے دفتروں سے باہر نکلیں اور آ کے دیکھیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں۔ ہمیں ان ظالموں نے اٹھا کے تحصیل کونسل میں ڈالا، ہماری پچھلے 2 سال سے صفائی کے حالات خراب ہو گئے، ہمارے یہاں پہ تجاوزات بڑھ گئی ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں ہم حل نہیں کروا پا رہے کسی طور بھی۔ آپ کے جو منتخب نمائندے ہیں ان سے کوئی بات نہیں ہوئی کہ یہ آپ کا سٹی کا ایریا بنتا ہے، شہری آبادی ہے، یہاں پر دکانیں ہیں، مارکیٹس ہیں، زرعی ایریا نہیں ہے، جب ساتھ کی نواح کی یوسی سٹی میں چلی گئی تو اس کو کیوں تحصیل کونسل میں رکھا گیا؟ جی بالکل صحیح بات کی آپ نے۔ میں نے کوشش کی، ہمارے ایم پی اے صاحب کو بھی میں نے کہا، ہمارے ایم این اے ملک احمد حسن ڈیڑھ صاحب کو بھی کہا، انہوں نے اپنے ٹیم بھی بھیجی، ہم نے یہاں سے تصویریں بنائی، ہم نے موویز بنائی، ملک صاحب کو دی، ملک صاحب نے تحریک استحقاق کمیٹی اپنا قومی اسمبلی میں پیش کی، مگر اس کے باوجود ہی بدقسمتی سے بیوروکریسی ہمارے قابو میں نہ آئی۔ اس کے باوجود بھی یہ جو مسئلہ ہے حل نہیں کیا گیا۔ آخر جو عوامی مطالبے ہیں وہ اگر حل نہیں کیے جائیں گے تو یقیناً غصہ بھی آئے گا اور عوام کا ریاکشن بھی آئے گا، اور یقیناً اس کا جو ثبوت ہے وہ آپ کو گفتگو میں مل رہا ہے۔ آپ بتائیے گا یہ جو ساری صورتحال بتائی جا رہی ہے صفائی کے حوالے سے، ہم نے لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا کچھ مہینے پہلے یہاں پہ کوریج کے لیے، صفائی کی واقعی اب تک صورتحال تھی، منتیں گا رہے تھے لوگ کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے اہلکاروں کو بھیجا جائے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے۔ اب کیا صورتحال ہے؟ اب بھی صورتحال جو ہے وہ اس علاقے کی وہ یہ ہے کہ اب وہ صفائی والے آنا تو شروع ہوئے ہیں، مگر وہ ابھی بھی روڈ سے صرف گند اٹھاتے ہیں اور اپنے رکشے میں ڈال کے اور لے جاتے ہیں، نہ سائڈوں سے کوئی جھاڑو دیتا ہے، نہ گلی محلوں میں جاتے ہیں۔ گلی محلوں کی آپ جا کے صورتحال دیکھیں، گلی محلوں کی صورتحال اس ٹائم اتنی بری ہے کہ لوگ وہاں پہ جس طرح رہ رہے ہیں یہ انہیں ہی پتہ ہے، اتنا وہاں پہ بدبودار علاقہ بنا ہوا ہے، اور اب گرمی آ گئی ہے، مچھر کا موسم شروع ہو گیا ہے۔ پی پی 212 میں جو ترقیاتی کام یا جو تبدیلی آنی چاہیے تھے وہ نہیں آئی؟ وہ میری نظر میں تو بالکل بھی نہیں آئی، اور نہ ہی
یہ ہمارے علاقے کے جو MNA صاحب اور MPA صاحب ہیں ان کی کوئی توجہ ہے اس کے اوپر، نہ کوئی سپرے ہوا ہے. جو کہاں پہ ہے، کہاں پہ عوامی نمائندوں کی توجہ کہاں پہ ہے؟ بس وہ ووٹ لینے کے لیے تو آئے تھے، اس کے بعد وہ اب اس علاقے میں نظر نہیں آ رہے، بس وہ اپنے گھروں تک محدود ہیں، اور اس کے بعد جب دوبارہ الیکشن ہوگا تو اس کے لیے وہ پھر نظر آئیں گے. یاد دہانی کے لیے نہیں بتایا کہ یہ مسائل ہیں، جب ووٹ لینے کے لیے آئے تھے ان کے کارکنان تھے، گلی محلے کے ورکر سے، وہ کہاں چلے گئے؟ کارکنان آپ کے ساتھ یونس بھائی کھڑے ہوئے ہیں، یہ اپنی طرف سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے یہ وہاں ان تک بات اپنی پہنچاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یا تو وہ مجبور ہیں کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جیسے یونس بھائی کہہ رہے تھے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ ان کو کام نہیں کرنے دے رہی. بھائی جان اپنی یوسی بتائے گا، جکھر پور کے تو جو مسائل تھے وہ ہم نے سنے، آپ کے جو علاقے کے مسائل ہیں وہ کیا ہے؟ سر جی UC 75 میں قبرستان ہے 2، اس کے ساتھ اتنا گند پڑا ہے، کوئی صفائی کا نظام نہیں ہے، نہ وہاں گٹر لین ہے، نہ پانی کا، نہ فلٹر پلانٹ کا، کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ اپنی مدد آپ چلتے ہیں. اب ٹف ٹیل لگ رہی ہے، وہاں پہ لگ رہی ہے جہاں نہیں لگنی چاہیے، وہاں گٹر لین ہے نہیں، اوپر ٹف ٹیل لگ رہی ہے، کوئی نظام یعنی اداروں میں کوئی کوارڈینیشن نہیں. لاسٹ ٹائم جو رپورٹ آئی تھی ہیپیٹائٹس کے مریض زیادہ تھے، پانی جو زیر زمین پانی ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے، تو پھر کیا نظام ہے، کس طرح لوگ پانی استعمال کرتے ہیں؟ پانی بس یہ مل فاٹک سے لے کے آتے ہیں یا گلشن شجاعت میں آتے ہیں، یہاں کتنا فاصلہ ہے اس کا؟ تقریباً 2 کلومیٹر کا سفر ہے، وہاں سے پانی لے کے آتے ہیں، یا اسٹیٹ میں لگا ہوا ہے ادھر سے پانی لے کے آتے ہیں. روزانہ 2-3 کلومیٹر آپ صرف پانی لینے کے لیے آتے ہیں؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، اس طرح ہی آتے ہیں پانی لینے کے لیے. فلٹر پلانٹ کوئی آپ کے علاقے میں نئے نہیں لگے جہاں سے آپ کو پانی مل سکے؟ بس ہر دفعہ یہی کہتے ہیں ہر الیکشن میں کہ جی اس دفعہ فلٹر پلانٹ آ جائے گا، اس دفعہ آ جائے گا، کوئی فلٹر پلانٹ نہیں ہے. گٹر لین کا کہہ دیتے ہیں جی گٹر لین آ رہی ہے، کوئی گٹر لین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت ناقص حال ہو رہا ہے. جی کوئی ناظرین یہ کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، یہ بیسک جو عوام کو ایک ضرورت ہے صاف پانی کی، جو حکومتوں کی ذمہ داری ہے اس کی فراہمی کا مطالبہ ہے، اور ہر الیکشن میں کہا جاتا ہے کہ فلٹر پلانٹ آئے گا اور آپ کو صاف پانی ملے گا، وہ بھی ابھی تک نہیں ملا. بھائی جان آپ بتائیے گا، جس طرح ہم نے دیکھا سنا حلقے کی صورتحال، آپ کے پاس کیا صورتحال ہے؟ سر جی ہمارے یہاں فی الحال تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، آٹا چینی بالکل نہیں مل رہا ہے یہاں پر. پہلے جو آٹے کی ٹرالی آتی تھی یہاں پر 1000 کٹو تقریباً ڈیلی یہاں آٹے کا سیل ہوتا تھا ٹرالی سے، لیکن جب سے یوٹیلیٹی سٹور پہ گیا ہے آٹا نہیں مل رہا ہے. یہی حال صورتحال چینی کی ہے. جو کہتے ہیں ہم نے 77 سٹارز لگا دیے اور ضلع بھر میں ہر جگہ لگے ہوئے، تو وہ یہاں نہیں ہے. ہمارے علاقے میں ایک بھی سٹال نہیں ہے، آپ کوئی دیکھ لیں ہمارے علاقے میں ایک بھی سٹال نہیں ہے. 2 یوٹیلیٹی سٹور ہیں جن پر سارا دن رش رہتا ہے، لیڈیز کو پریفر کرتے ہیں لیکن سامان کل قطاریں لمبی طویل قطاریں دیکھی، وہاں پر 50 بندے لائن میں کھڑے ہیں روزے کے ساتھ. تو پھر کس طرح سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ریلیف فراہم کریں؟ حکومت صرف زبانی کلامی ریلیف فراہم کر رہی ہے، عوام تک نہیں پہنچ رہا. عوام تک ریلیف پہنچ نہیں رہا. جکھر پور میں جو مسائل ہیں وہ آپ نے جانے، اس کے علاوہ جو دیگر یوسیز میں مسائل جو زبانی آپ کو بتائے گئے، اس حوالے سے یقیناً جو منتخب نمائندے ہیں ان کو اس حوالے سے ورکنگ کرنا ہوگی. جو اگر عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو جمہوری سسٹم پر کس طرح اعتماد کیا جائے گا، جو ووٹ کی پاور ہے اس پر کس طرح اعتماد کیا جائے گا جب عوام کو صاف پانی نہیں ملے گا، جب عوام کو صفائی نہیں ملے گی، جب عوام کو آٹے کے حصول کے لیے طویل قطاروں میں لگنا پڑے گا. تو پھر کیا حکومت کی کارکردگی ہوگی اور کیا حکومت اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اگلے الیکشن میں ووٹ مانگے گی؟ ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے بات کی حلقہ PP 212 کے مسائل کے حوالے سے، جس طرح عوام نے بتائے مسائل، ہم مزید بھی پہنچے ہیں شہریوں کے پاس اور ہم مزید جانتے ہیں کہ اس حلقے کے کیا مسائل ہیں اور آخر حل کیوں نہیں کی جا رہی. صحت کی سہولیات کی اگر ہم بات کریں، دعوے کیے جاتے ہیں کہ یہاں پر ورکنگ کی جا رہی ہے، ریالٹی کیا ہے؟ ہاسپٹل جو جہاں پر ہیں ان کی کیا صورتحال ہے؟ کوئی ڈسپینسری اس علاقے میں موجود ہے؟ ہمارا اتنا بڑا ایریا ہے، پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا روئی چینل والوں کا کہ وہ ہمارے علاقے میں آئے، اور دوسرا یہ کہ اتنا بڑا ایریا ہونے کے بعد ہمارے یہاں کوئی گورنمنٹ سرکاری ڈسپنسری، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں یا تو نشتر جانا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ شیر شاہ ہاسپٹل ہے، کیونکہ ہم شیر شاہ ہاسپٹل دیہی علاقہ ہے، دیہاتی علاقہ ہے. بات کریں اس کی جکھر پور کی اور UC 75 کی. جی ہمارا علاقہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود کوئی بھی یہاں پر
डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल मौजूद नहीं है जो हम एमरजेंसी कोई मसला हो तो फ़ौरन आकर यहाँ मेडिसिन इस्तेमाल कर सके। तो इसकी नवाब में कोई यूज वो नहीं है जहाँ पे डिस्पेंसरी हो? यहाँ से 8 किलोमीटर के फासले पर देही इलाके के अंदर शेरशाह के अंदर एक अस्पताल है सरकारी, वहाँ पे हमें जाना पड़ता है। हालांकि शहरी इलाका हमारा है, आबादी इधर है, अस्पताल इधर होना चाहिए, बनाना इधर चाहिए। अब हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जहाँ पर कोई अगर फंड आता है तो वो ये कहते हैं कि अपनी जगह दें, हम इमारत बना देते हैं। अब हमारे यहाँ लोग 5-10 मरले के रहने वाले लोग हैं। अब ज़ाहिर बात है वहाँ पर देहाती इलाकों में जो ज़िम्मेदार हैं उनकी अपनी ज़मीनें होती हैं, वहाँ पर उन अस्पतालों को लेके चले जाते हैं। कि हुकूमत ओन नहीं कर रही है। हुकूमत का जो दावा करती है कि हम सेहत की मैदान में इनकलाब लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई वर्किंग नहीं की जा रही। जब से पाकिस्तान बना है हमारे यहाँ पर सारा निज़ाम वही चल रहा है, ठीक है ना। हमारे यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई आज तक। हम तब्दीली लाना चाह रहे हैं कि तालीम हासिल करने के बावजूद, शऊर आने के बावजूद भी हमारे लोग यहाँ पर, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मगर कोई नहीं जो सोचता कि यहाँ पर बच्चे हमारे बीमार होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग कर। इस सरकारी अस्पताल यहाँ पर नहीं है, प्राइवेट पे जाते हैं, 1500 रुपये उनकी फ़ीस होती है। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स जाएँ तो यहाँ से दूर है, वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। सड़कों की सूरत हाल कैसी है आपके इलाके में? सर मेरा यूसी 77 से ताल्लुक़ है, यहाँ की बस्ती गोचे से ताल्लुक़ है मेरा। यहाँ पे आप आके देखें मेरिट पे काम नहीं हो रहे, थोड़े बहुत काम हुए मेरिट पे नहीं है। जिनका हक बनता है गलियाँ बनने का, वो गलियाँ नहीं बनी। जो पहले की बनी हुई है उसी को उधेड़ के दोबारा बनाई। अप्रोच सियासी अप्रोच कुछ भी नहीं है, सिर्फ सियासी अप्रोच पे वही काम हो रहे हैं कि जिनकी अपनी गलियाँ हैं वो गलियाँ बनाई जा रही हैं। जिसकी गली में जब से यहाँ से ये बस्ती बनी है, यहाँ पे देख लें आप, अक्सर मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ गली, वो गली में बताइए तक ही नहीं लगी, सिर्फ सियासी बहस के ऊपर। वजह क्या है? क्यों वो वहाँ से वोट नहीं मिले थे उनको? वोट नहीं मिला यही वजह है। मेरे अपने घर के सामने मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा दूसरी जमात से ताल्लुक़ है, तो मेरा अपने घर के सामने गली नहीं बनी हुई, जितना मेरा घर है बकायदा टोटल गली बनी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मेरिट की बात करती थी, वो कहती थी कि हम हर किसी का काम करेंगे, वो बात नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है, मेरिट पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। सिर्फ सियासी उस पर जिसका ताल्लुक़ है उनके काम हो रहे हैं। हमने आवाज़ भी उठाई है, जहाँ तक हमने लोगों से ताल्लुक़ था, हमने ताल्लुक़ भी जुड़ाया है, लेकिन हमारे काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुए इनका? इसका मसला बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर सेवरेज देखें, पुरानी सेवरेज है, जो सेवरेज नई थोड़ी बहुत कहीं पे गिरी है और कहीं पे नहीं है। लोग लास्ट टाइम पब्लिक हेल्थ का भी मनसूबा आया था सेवरेज का, वो बना था कि नहीं बना? हुआ। सीएफ पीपल्स पार्टी के दौर में एक यहाँ पर सेवरेज का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट गिरा था, वही सेवरेज थोड़ी कामयाब यहाँ पर चल रही है, बकाया अभी काम नहीं हुआ यहाँ पर सेवरेज का सही। बाकी यहाँ पर काम नहीं हो। यहाँ पर एक मेन मसला ये भी रहा है कि इस हल्के में अगर माजी में कोई फंड आया भी सही तो वो पता नहीं कहाँ चला गया, लगा नहीं, और वो जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ वो मुकम्मल भी नहीं हुआ। सूरत हाल जिस तरह शहरी बता रहे हैं, कहीं पर सेहत के मसाइल हैं, कहीं पर गलियों के मसाइल हैं, तो ये आखिर जब हल नहीं होंगे तो आवाम किस तरह यहाँ पर आवाम फेस कर रही है मुश्किल? मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। इस हल्के से लोग वज़ीर आज़म रहे हैं, वफाकी वज़ीर रहे हैं, तो यकीनन बहुत अरसे है गुज़रा हुआ जो महरूमी की एक लंबी चौड़ी दास्तान है। यहाँ पे मेरा यूसी 76 से ताल्लुक़ है। मैंने मलिक अहमद हुसैन डेढ़ साहब ने 1 करोड़ 35 लाख का फ़ंड दिया है, जिसमें हम जो है वो कब्रिस्तान है हमारा 700 साल पुराना, हज़रत सैयद बहाउद्दीन का दरबार भी है, वहाँ पे काम हो रहा है। और 35-35 40-40 साल से जो गलियाँ नहीं बनी थी, वहाँ पे हम उनको फोकस करके उनको बनवा रहे हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है। इससे एक जो है डेवलपमेंट का काम जो है वो जितना भी हो उतना कम है। सेहत के मसाइल भी हैं, यकीनन उस पर तवज्जो दी जा रही है। एक और जो बड़ा अहम मसला है हमारे रोड का, वो मैं आपकी जो है वो तवज्जो दिलाना चाहूँगा और हुकाम की तवज्जो भी दिलाना चाहूँगा। नादराबाद फाटक है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहता है 1-1 डेढ़ घंटा। अब फ्लाईओवर का डिज़ाइन बन गया, फ़ंड गालिबन मंजूर हो गया। अब इसी रोड पे जो ट्रैफिक वार्डन हैं 4-5-6 लोग नज़र आएंगे आपको कैंटोनमेंट के एरिया में, इसी शेरशाह रोड पे, जो चालान करने के लिए खड़े होंगे। यहाँ पे जब ट्रैफिक जाम होती है तो एक वार्डन होता है कभी, और कभी वो भी नहीं होता। तो यहाँ से गुज़रते हुए मरीज़ होते हैं, एम्बुलेंस होती हैं, बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं, जो है वो गर्मी होती है, बच्चे मोटरसाइकिलों की टैंकियों पे बैठे होते हैं, बड़ी शदीद गर्मी होती है, तो 1-1 डेढ़ घंटा यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहता है। तो ये हम जो है वो गुजारिश करेंगे यहाँ से 4-5 जो है वो ट्रैफिक वार्डन तैनात किए जाएँ। ट्रैफिक का जो है पुलिस का मकसद जो है वो ट्रैफिक बहाल रखना है। हेल्थ का मनसूबा था कुछ है यहाँ पे आपको कहीं पे नज़र नहीं आएंगे। तो हमारे जो है वो अभी मौजूदा जो काम हो रहे हैं, अभी जहाँ खड़े हुए ये भी टफ टाइल लगी हुई है, तो मौजूदा गवर्नमेंट में ही बनी है, तो काम नज़र आ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो उस पर जो है वो टाइम लगेगा। मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, टाइम लगेगा, ये कहना था, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ये टाइम ख़त्म होगा और जल्द मसाइल हल होंगे।
बात हम जिस तरह मुसलसल कर रहे हैं शहरियों से और मुख्तलिफ आरा आ रही हैं हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, अब तक 2.5 साल की कारकर्दगी एक शहरी के सीए से आप किस तरह देख रहे हैं? महंगाई का तूफ़ान कैसा रहा, आवाम के मसाइल को किस तरह हल किया गया, जो गली मोहल्लों के मसाइल हैं वो किस तरह हल किए गए या नहीं किए गए? सर जी, बात ये है कि महंगाई आपको सबको नज़र आ रही है। मैं अपने इलाके के एक छोटे से मसले की तरफ आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ। हमारे इलाके में एक ही कब्रिस्तान है और उसमें जगह बिल्कुल भी नहीं है। आज से कुछ अर्सा पहले 65 लाख रुपए की जगह हमने अपनी मदद आपके तहत उधर ख़रीदी, वो जगह भी पूर हो गई है। हमारे कब्रिस्तान की कोई चार दीवारी नहीं है। उधर जो नलके लगाते हैं वो लोग चोर लोग उखाड़ के ले जाते हैं। कोई कौंसल कोई वर्किंग नहीं कर रही? कोई वर्किंग नहीं है जी, कोई वर्किंग नहीं है। ना उधर लाइट्स का इंतज़ाम है। अगर रात को अगर हमें कब्रिस्तान जाना पड़ जाए मैयत लेकर तो हमें बड़ी परेशानी होती है। उधर कोई भी इस किस्म का वो नहीं है। कंप्लेंट वगैरह दर्ज कराई आपने? बहुत से अपने एमएनए को भी एमपीए को भी सबके पास ये बातें हैं, उनके इल्म में हैं, मगर कोई भी तवज्जो नहीं है। अब इस वक्त हमारे कब्रिस्तान के इतने मसाइल हैं कि अगर चंद दिनों में इन्हें उसके मसाइल ऐसे हैं कि हमें अपने जनाज़ों को किसी और जगह लेके जाना पड़ेगा। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारे कब्रिस्तान के लिए कोई जगह अलाट की जाए, उसके लिए कोई 2 बंदे दिए जाएं जो उसकी देखभाल करें, उसकी चार दीवारी बनाई जाए, रात को लाइट्स का इंतज़ाम किया जाए। ये हमारा बहुत बड़ा मसला है सर। नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह के मसाइल का सामना है। स्ट्रीट लाइट्स के साथ साथ कब्रिस्तान के मसाइल, वाटर सप्लाई के मसाइल, गलियों मोहल्लों में जो सीवरेज और वाटर सप्लाई के मसाइल हैं वो हल्का PP 212 में बढ़ते जा रहे हैं और उसके लिए यकीनन एक बड़े पैकेज की ज़रूरत है। मुल्तान पैकेज की भी बात की जा रही है कि मुल्तान पैकेज में जो CM पंजाब विज़िट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर विज़िट करेंगे, उसमें अनाउंस किया जाएगा। तो इन शहरियों का मुतालबा ये है कि जो 2.5 साल में काम नहीं हुआ, जो अगले 2.5 साल हैं, खुदा के लिए अब इस हल्के पर और जो पसमानदा एरियाज़ हैं उन पर हुकूमत फोकस करे और यहाँ के मसाइल हल करे। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे मुंतखब नुमाइंदों से भी और उन अरकान से भी, उन मेम्बरान से भी जिन्होंने इन लोगों से वोट मांगे और वोट लिए और कहा कि हम मसाइल हल करेंगे, वो कहाँ पे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या ख्यालात हैं, क्या वो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है या क्या उनको कोई उम्मीद है। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने देखा कि अवाम के जो मसाइल थे PP 212 के, और उसके साथ साथ जिस तरह शहरियों ने बार बार बताया कि उनके हल्के में जो मसाइल हैं उनके हल के हवाले से जो इक़दाम किए जाने थे वो नहीं किए जा रहे और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कब मुकम्मल होंगे, शहरी इस हवाले से शिकवा कुना थे। उसके साथ साथ हल्के में जो सीवरेज के मसाइल हैं, वाटर सप्लाई के मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं, इस हवाले से भी शहरियों ने अपनी शिकायत की। इस पर बात करने के लिए हम मज़ीद बात करने के लिए पहुँचे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 212 की जो तंजीम के अरकान हैं, जिन्होंने जाकर वोट मांगे, जिन्होंने जाकर लोगों से वादे किए और कहा कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे। हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या शहरियों के मसाइल हल किए जा रहे हैं? क्या वो खुद पुर उम्मीद हैं कि अगले 2.5 साल में आवाम के मसाइल हल होंगे या PP 212 के आवाम को इस हवाले से कोई रिलीफ मिलेगा? हम उनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा, हम जिस शहरी के पास जाते हैं लोग शिकवा करते हैं कि हमारे मसाइल हल नहीं किए जा रहे, जो वादे किए गए, जो उम्मीदें दिलाई गई, जो जलसों में बातें की गई, जो तब्दीली की बातें की गई, वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं। क्या वाकई ऐसा है? लोगों के मसाइल तो हैं एज इट इज़ हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो खान साहब जो है इसको भी कंट्रोल करने में थोड़ा सा मतलब वो पीछे रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हमारा मुल्क जो है स्टैंड करेगा, ये जो हमारा कर्जा है ये उतरेगा, तो फिर हम इस डेवलपमेंट को जो है मज़ीद अच्छी तरीके से कर सकेंगे। बाकी जो डेवलपमेंट हुई है PP 212 की मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि हमारा घर यहाँ पे है। तो यहाँ 8-10 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में पूरे मुल्तान में किसी हल्के में अभी तक जो है वो मंजूर नहीं हुए। उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास निश्चित 2 का क़याम है। ठीक है, जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है अशुदाबाद रोड पे तैयार हो रहा है, तो इंशाल्लाह 1 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है अल्लाह आपका भला करे, जो है वो एक शॉर्ट रोड भी इन्होंने दिया है जो मुजफ्फरगढ़ से लिंक करेगा और निश्चित 2 तक एक्सेस हासिल करेगा। जो DG खान से लोग आएंगे, मुजफ्फरगढ़ से इसके राउंड अबाउट जो भी लोग हैं, वो वहाँ पर तक पहुँचने में उनको आसानी रहेगी। उसके अलावा जो है हमारे जो है PP 212 में ये थोड़े से काम मैंने लिखे थे, मैंने कही ऐसा ना हो मैं भूल
भूल जाऊँ, जल्दी में बंदा आप कंफ्यूज। बता दें क्योंकि आवाम के भी काफ़ी मसाइल हैं, वो भी हम आपके सामने बयान करेंगे कि शहरी क्या कहते हैं। और इसके अलावा प्रोजेक्ट ये जो है शेर शाह अस्पताल जो है हमारा, ये 40 साल पुराना हॉस्पिटल है। यहाँ पर अभी ट्रामा सेंटर का जो है इन्होंने क़याम का इजरा किया है। इंशाल्लाह जल्द ही इसका जो है ना वो भी 2 से 2.5 करोड़ रुपए का फंड है, वो भी रिलीज़ होगा। तो ये इस मुजफ्फराबाद पे जो 6 से 7 यूनियन काउंसिल लिंक करती हैं, यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल वही है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ट्रामा सेंटर की ADP में शामिल की गई थी, लेकिन उसे अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। Approve नहीं हुए, बिल्कुल एज इट इज़ है, बिल्कुल एज इट इज़ है। ठीक है, तो ये भी PP 212 की इंशाल्लाह ये आप कैसे थे कि आने वाले दिनों में उम्मीद है कि ये मसले हल होंगे। अच्छा, सफाई के हवाले से इस हल्के की बात करें तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर शहरी शिकायत करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कहती है हमारा हल्का नहीं है, आवाम कहती है हम किसके पास जाएं, ज़िला कौंसिल के पास इख्तियारात नहीं है सफाई की, तो कहाँ जाएं, उसका क्या हल है? वो हुआ यूँ है कि ये जो हमारी 4 यूनियन काउंसिल जो हैं 5 सॉरी, वो पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट में आती थी। ठीक है, अभी इन्होंने पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इसको सिटी में डाल दिया, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से आप इसको सिटी या उसमें डेवलप तब्दील कर सकते हैं। तो जो देहात में थी उन यूनियन काउंसिलों को हमने जैसी अटैच की है शहरी सतह पर, तो लाजमी बात है वहाँ जो 100% सहूलतें थी, यहाँ पर 20% भी नहीं थी। ना रोड थे, ना सीवरेज का निज़ाम था, ना गैस थी, क्योंकि देहात था बिल्कुल। तो यहाँ मसाइल इसलिए बहुत ज़्यादा हैं कि फंडिंग तो वैसे ही हो जैसे शहर में होती थी, लेकिन चूँकि यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होनी है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका कोई MPA पे दबाव है कि लोग आपसे ये मसाइल की बात करते हैं, तंजीम क्या कह रही है? तंजीम अपने इलेक्टेड नुमाइंदों के पास जा रही है, MNA के पास जा रही है, MPA के पास जा रही है कि यार लोग हमारा सर खा रहे हैं, इस सवाल से तंजीम क्या कहती है? ये तंजीम को भी बताता हूँ। ये हमारा यूनियन काउंसिल 78 है, इसके साथ ही 77 है। यहाँ पर 2 डिस्पोजल अभी दिया मतलब इन्होंने बनाए हैं इन 2 सालों में। आप किसी से भी पूछे, बहुत बड़े डिस्पोजल है जो मतलब 4 यूनियन काउंसिलों का पानी जो है वो सक करके दूसरे तरफ मतलब जा रहे हैं। ये अभी इसी दौर में हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो आप बात करें तंजीमी हवाले से, तो MNA MP तो टाइम देते ही हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद भी जाना होता है, लाहौर भी जाना होता है, मीटिंग्स भी अटेंड करनी होती है, उन्होंने देरे पे संडे को बैठना भी होता है, लोगों के मसाइल भी सुनने होते हैं। लेकिन संडे वाले दिन चूँकि गवर्नमेंट इदारे बंद होते हैं, तो हम जैसे वर्कर जो हैं वो उन लोगों के साथ जाके उनका काम करते हैं। वर्कर जाके काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ज़िला मुल्तान के शर्जील सिद्दीकी, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सिद्दीकी साहब बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा था कि हम वर्कर की बात सुनेंगे, MNAs MPS की जो डेरे होंगे वहाँ पर जो एक रवायती अंदाज है चलता है वो नहीं होगा, वर्कर की बात सुनी जाएगी। हम अक्सर वर्कर को मायूस देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे मसाइल जो हमने अवाम को कहा था कि वोट दें बल्ले पे मारें मोर, उसके बाद तब्दीली आएगी, वो कहते हैं पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या वाकई ऐसा है या तंजीम अभी अब आपकी एक्टिव है? जी बिल्कुल, ये मसाइल वर्कर्स को जो है ना शुरू में हम लोगों को रहे हैं, तमाम वर्कर्स को PTI के ब्यूरोक्रेसी या जो भी सरकारी तौर पर लोग थे, वो ज़ाहिर बात है क्योंकि PTI पहली दफ़ा गवर्नमेंट में आई है और अक्सर जो वर्कर्स हैं PTI के वो नौजवान हैं, तो उनको कुछ तरीके जैसे पीपल्स पार्टी या नून लीग वाले वर्कर्स थे वो पुराने होते थे, उस तरह से उनको नहीं पता था। लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर जिस तरह से समझ आने लग गई है हमें, तो हम अपने मसाइल जो इज्तमाही मसाइल हैं तो वो जाकर हम MNA साहब को जो है ना वो अपना डिस्कस करते हैं, उनके साथ उनको बताते हैं, तो वो आगे से जितना भी हो सकता है वो करते हैं। PP 212 में मलिक सलीम अख्तर लाबर साहब हैं, तो वो बिल्कुल हम तमाम वर्कर्स के साथ बिल्कुल ताउन करें। इस वक्त हमारी PP 212 की 12 से 13 यूनियन काउंसिल्स में, सब यूनियन काउंसिल में सीवरेज का काम आप अगर विज़िट करना चाहें तो हम आपको किसी भी वक्त विज़िट करा सकते हैं। वो जारी है, यानी कि इन प्रोग्रेस है, वर्किंग है, ठीक है ना, वो चल रहा है। क्योंकि ठेकेदारों के मसाइल होते हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, पब्लिक हेल्थ या दूसरे उनके मसाइल होते हैं, उनकी वजह से कुछ काम कभी रुक जाता है, कभी कोई भी, अभी जैसे चेयरमैन बहाल हो गए हैं तो तहसील कौंसिल में फ़ंड्स के मसाइल थे, वो ठेकेदार थोड़े से परेशान हो गए थे कि पुराने चेयरमैन बहाल हो गए हैं, तो इस तरह के और मसाइल चलते रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी शुरू में बिल्कुल समझते हैं कि वर्किंग आपके हल्के में की जा रही है, जो आप लोगों ने वादे किए थे वो पूरे किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, वादे जितने भी हैं उनमें से तमाम तो पूरे अभी तक नहीं हो सके, लेकिन इन प्रोसेस हैं, वो चल रहे हैं वादे। उनमें अब ये देख लें कि हमारे PP 212 में 2 लैंड रिकॉर्ड सेंटर जो है ना वो मंजूर कराए हैं मलिक सलीम अख्तर लाबर साहब ने मेहनत करके। एक कासिम बेले में वर्किंग है लैंड रिकॉर्ड, लोगों को वहाँ मती तल नहीं जाना पड़ता। दूसरा लाबर में अगले महीने नेक्स्ट महीने उसकी ओपनिंग है। इसके अलावा निश्तर 2 के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश की, जो कि मंसूबा जो है ना पाकिस्तान में जैसे होता है कि उसको मंसूबा तो वो था, लेकिन उसको हमने एक शायद से बात की हुई, ये कहते हैं कि अभी तक जो थानों के मसाइल हैं, लैंड
सैनिटरी गार्ड सेंटर बन रहा होगा, अच्छी बात है, 2 सेंटर बन रहे हैं, लेकिन अभी तक जो पटवारी कल्चर है वो चेंज नहीं हुआ, अभी तक वही सिस्टम है, अभी तक उसी तरह लाइनों में लगना पड़ता है, अभी तक उसी तरह पैसे दे के काम करना पड़ता है, अभी तक ये तो तब्दीली नहीं आई अभी तक। थानों के लिए जो थानों का कल्चर है उसके लिए अभी आईजी साहब ने जो है वो पंजाब में कोई 71 एसएचओस को जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनको उन्होंने सस्पेंड किया है जब तक कि उनके केसेस क्लियर नहीं हो जाते। तो हमारा ये कहना है कि ये वाकई एक मसला है। हम एज ए पीटीआई वर्कर भी इमरान खान साहब को भी ये मैसेज देना चाहेंगे और तमाम अपनी लीडरशिप को कि ये जो थाना कल्चर है इसको ख़त्म करें। जितने भी एसएचओ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले हैं उनको ताहाल उनको जो है ना या तो उनको रिटायरमेंट दें और उनकी जगह नए पढ़े लिखे लोग लेके आए, ठीक है ना, जो कोई भी रिकॉर्ड याफ्ता नहीं रहना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है, महंगाई भी एक प्रॉब्लम है, जैसे आटे का और ये जो चीनी वगैरह के बहरान हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने हल्के की आवाम के लिए हमारे एमपी साहब मलिक सलीम अख्तर लाबर साहब के साथ कोऑर्डिनेशन करके जितनी भी कोशिश हो सकती है हमने आटा कंट्रोल रेट पर हम खुद लेके आकर लोगों को सप्लाई देते रहे हैं। पीपी 212 के हवाले से जिस तरह बात की, हमारे साथ मजीद भी जो पीपी 212 के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लेबर विंग के हुकाम है उनसे जानते हैं कि भाईजान किस तरह वर्किंग की जा रही है लेबर के हवाले से, मजदूरों के हवाले से। लास्ट टाइम इंडस्ट्रियल स्टेट का यहाँ पे इलाका है तो उस हवाले से भी शिकायत थी, किस तरह से काम किया जा रहा है यहाँ पे? लेबर के जो इधर के मसाइल थे वो अल्हम्दुलिल्लाह के काफ़ी हल हो चुके हैं और काफ़ी हम हल कराने के लिए हम उसके स्टेप बाय स्टेप जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि स्टेट एरिया में कुछ फैक्ट्री ऐसी थी जो तनख्वाहें लेबर्स को जो है ना रूटीन के मुताबिक नहीं देती थी, कि लेट हो जाते थे, जो भी उनके मसाइल थे। हमने एमपी साहब को ये मसाइल जो है ना हमने एमपी साहब को बताए। एमपी साहब ने कोशिश की है, उनसे बातचीत की है ताकि भाई गरीब तबका होता है ये लेबर, इनके लिए कि इनको स्टार्ट में ही के महीने के स्टार्ट में ही तनख्वाह इनको मिल जाती है। तनख्वाहों के हवाले से आप फोकस करें कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट में जो लास्ट टाइम एहतजाज हुए तो इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि इस तरह के मसाइल मजदूरों को ना पेश आए। हाँ, इसी तरह तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मसाइल हल हों। अब एहतजाज वगैरह लोग जो है ना अब तंग आ चुके हैं, जो मजदूर तबका अब तंग आ चुके हैं इन फैक्ट्रियों वालों से। हमने एमपी साहब को कहा है कि इनके मसाइल जो है ना आप इन सब के जो स्टेट एरिया के जो भी हैं हल, इनके मसाइल आप हल कराएं। और आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मजमूई कारकर्दगी रही है? महंगाई, आम आदमी कहता है महंगाई ने जीना दोबर कर दी है, मुश्किलात हैं, वाकई ऐसा है? शुरू में तो ऐसा था, अब जो है काफ़ी कंट्रोल हो गया, बेहतरी आ गई है। बेहतरी आ गई है मेरे हिसाब से। इंशाल्लाह मज़ीद जो 2.5 रह गए हैं उनमें मज़ीद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी कहते हैं कि अल्लाह करे बेहतरी आए और अल्लाह करे आवाम के मसाइल कम हो, लेकिन शहरियों का ये कहना है कि मसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपी 212 की जो इस हवाले से जो हल्के की तंजीम के जो अरकान थे उनकी गुफ्तगू आपने जानी। पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि उनके हल्के के जो मसाइल हैं वो हल किए जा रहे हैं। जो आटे और चीनी के हवाले से मसाइल हैं उन पर भी फोकस किया जा रहा है, उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी काम किया जा रहा है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि पीपी 212 में आने वाले दिनों में क्या होगा और जो मसाइल हैं उनको किस तरह हल किया जाएगा। जो आवाम ने शिकायत की, जो आवाम ने मसाइल बताए, जो आवाम ने अपनी परेशानियां बताई, उसका किस तरह से इजाला होगा। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिस तरह बात करें आज पीपी 212 के हवाले से और हमने हल्के में मुख्तलिफ लोगों से बात की, आवाम के मसाइल के हवाले से बात की और उसके साथ साथ जो तरक्याती काम हैं उनके हवाले से राय जानी। और हम इस वक्त मौजूद हैं बस्ती अम्बाला में। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी मलिक सलीम लाबर। हम उनसे जानेंगे कि क्या तरक्याती काम किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो हल्के के मसाइल हैं उनको किस तरह हल किया जा रहा है, जो आवाम की मुश्किलात हैं उसके हवाले से उनकी हुकूमत ने अब तक क्या इक़दाम किए हैं, मज़ीद आने वाले दिनों में किस तरह मसाइल हल होंगे, जो रोड्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा सीवरेज और वाटर सप्लाई के मनसूबे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। मलिक साहब, सबसे पहले शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जैसे कि पीपी 212 की बात करें, माजी में पसमानदा हल्कों में शुमार होता रहा है मुल्तान के, अब क्या सूरत हाल है? आवाम कहती है कहीं पे काम हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा। इस वक्त भी हम जैसे कि आपने एक मनसूबे का इफ्तिताह किया है, किस तरह वर्किंग जारी है आपकी? हमने जो है जैसे ही मैं और ख़ास तौर पे मैं अपने लीडर इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे हल्के को खसूसी जो है ना सेहत के बारे में जो है मुझे यहाँ ज़रूरत थी, उन्होंने मेरे हल्का अपना इंतखाब को
मुंतखब किया और जहाँ निस्टर 2 बनाया जो कि 10 अरब रुपए का मंसूबा है अभी पहला, जिससे 500 बेड का अस्पताल बनेगा, लेटेस्ट ट्रामा सेंटर बनेगा और यूनिवर्सिटी बनेगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो है प्रोग्राम 10 अरब से 500 बेड का दूसरा अस्पताल बनेगा। निस्टर 3 और निस्टर 2 का जो मंसूबा है, हम पहले सुनते थे कि शेर शाह के जो हॉस्पिटल है उसके हवाले से मसाइल, अब निस्टर 2 के आने से आप समझते हैं कि जहां आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात मिलेगी? जी, इसके लिए मैंने कोशिश की थी कि मेरे यहाँ अपना लाबर के नज़दीक मेरे हल्का इंतखाब में बनाया जाए, क्योंकि हर आदमी को अपना लालच होता है। मेरे दूसरे कुलीग्स ने भी कोशिश की, लेकिन मेरी गुजारिश पर वो सब मुतफिक हो गए कि उन्होंने कहा कि चलो यहाँ बनने दें, और मैं उनका अपने सब कुलीग्स का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी इसमें मुआवनत की और यहाँ मेरे हल्के में निस्टर 2 बन गया। निस्टर 2 का मंसूबा है। आपके हल्के की बात करें तो दही इलाका ज़्यादा इसमें आता है, बस्तियाँ आती हैं, नवाही इलाके मुल्तान के आते हैं, तो वहाँ पर इस हवाले से जो वर्किंग है, आवाम ज़्यादा डिमांड करती है सड़कों की, सोलिंग की, उस हवाले से क्या वर्किंग जारी है? वो मैंने अपना अल्लाह की मेहरबानी से बहुत सारे मैंने सड़कें बनाई हैं, 5-5 किलोमीटर की, 6 किलोमीटर का। आज का जो मंसूबा है ये 7 किलोमीटर का है। और सबसे बड़ा मेरा जो रोड के हवाले से है, शेर शाह से निस्टर 2 को अप्रोच करने के लिए डबल रोड, जो कि पहले फेज़ में 24 करोड़ रुपए की है और दूसरे फेज़ में फिर 24 करोड़ की है, वो 48 करोड़ रुपया वो इस पे, और वहाँ एक साइड मुकम्मल हो गई है, दूसरी साइड इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल हो जाएगी। इसके अलावा एक बस्ती तालाब शेर शाह से बुश तक एक बड़ी अहम सड़क थी, वो भी उस पर भी काम शुरू हो गया है, और भी वो भी तकरीबन 7 करोड़ रुपए का मंसूबा है। इस तरह मैंने अपने हल्का में जो मुझे CDP मिली है उसका मैंने बराबर यूनियन काउंसिल में तकसीम किया है, और हर यूनियन काउंसिल में आप जहाँ भी जाएंगे आपको काम होता हुआ नज़र आएगा। और इंशाल्लाह अभी हमें मुल्तान पैकेज मिल रहा है। जहाँ तक इंसाफ शफाफियत की बात करती है, माजी में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने मंसूबे बनाए, कागज़ों तक महदूद रहे, उसके बिल पास हो गया, लेकिन वहाँ पर कुछ जो उसके मुकम्मल तौर पर सही मंसूबे नहीं थे मटीरियल। तो अब क्या किस हद तक शफाफियत को मुकर्रर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि किस हद तक उसको फोकस किया जा रहा है? मैं जब हमारी हुकूमत आई है तो आप यकीन करें कि इतने मसाइल थे, गवर्नमेंट ने जो हेल्थ में या जिसमें जो चेक दे गए थे उनके अक्सर चेक डिसऑनर हो गए। मंसूबे थोड़े से वो ठेकेदारों को दिए, उन्होंने सारे खोद के तो रख दिए लेकिन नहीं किया। और ख़ास तौर पे मेरे पास जो चीज़ें आई 3-4 यूनियन काउंसिल, साफ़ पानी का मंसूबा आया या ये आया, तो वो अब मेरे लिए एक इम्तिहान था कि या तो मैं इसको ख़त्म कर दूं, लेकिन जब मैंने वहाँ जाके सूरत हाल देखी कि अगर मैं इस मंसूबे को ख़त्म करता हूँ जिसके कोई फंडिंग नहीं है, जिसका कुछ नहीं है, तो इसके ये सारा जो है ये इलाका 3-4 यूनियन काउंसिल हैं, कासिम बेला, ममनपुर घोटा, टिब्बा मसूदपुर और इस तरह ये जो है जखड़पुर, ये स्कीमें जो थी, बहावलपुर सूखा था, तो मैंने फिर इनको ओन किया और मैंने वज़ीर आला साहब से गुजारिश की, उन्होंने मेहरबानी की, इनके फ़ंड जारी करने शुरू कर दिए और अभी भी हमें बहुत ज़रूरत है, लेकिन मेरे ख़्याल में 75% हम कामयाब हो गए हैं और इंशाअल्लाह हम 100% जो है मुकम्मल इसको करेंगे, जिससे साफ़ पानी भी मुहैया हो जाएगा, जिसमें सीवरेज सिस्टम है, डिस्पोजल्स हैं, वो भी मुकम्मल हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद काफ़ी की जाती है, महंगाई के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि जो 2.5 साल का पीरियड गुजर गया है और 2-2.5 साल रह गए हैं, तो आने वाले दिनों में आवाम को किस हद तक रिलीफ मिलेगा? हल्के की बात कर लें, कोई नया प्रोजेक्ट, निस्टर 2 का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट हैं नज़र में कि आने वाले दिनों में इस हल्के में तरक्याती काम? मेरे हल्के में कैडेट कॉलेज, वो जिसको ड्रॉप किया जा रहा था, कोई तजवीज़ दे रहा था यहाँ गला मंडी ले आए, यहाँ कुछ है। मेरी कोशिशों से और मैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का
खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस मंसूबे को शुरू कर दिया है। उसकी फिजिबिलिटी बननी शुरू हो गई है। महकमा तालीम वाले भी आ गए हैं, महकमा माल वाले भी आ गए हैं, वो सब वहाँ उस पर काम शुरू हो रहा है। और मेरी कोशिश है कि वज़ीर आला साहब जब मुल्तान आए तो मैं उनसे उसका संग बुनियाद रखूँ। कैडेट कॉलेज के हवाले से अच्छा, लास्ट में हम जानना चाहेंगे कि मेट्रोपॉलिटन शहर के एरिया में तो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वगैरह फोकस किए होते हैं, लेकिन जो ज़िला कौंसिल के होते हैं, तहसील कौंसिल के इलाके होते हैं, वहाँ पर फोकस कम किया जाता है। तो इस हवाले से कोई इंतज़ामिया से बात की जा रही है कि यहाँ पर इंतज़ामिया फ़ोकस करे मसाइल को हल कराने के लिए, डिप्टी कमिश्नर के दौरे हों, इसके अलावा जो छोटे मोटे मसाइल हैं वो हल किए जाएँ? ये कल जो हमारी मीटिंग थी इसमें एक जो है ना एजेंडा में ये भी शामिल था। अच्छा, मेरा हल्का जो है वो मेट्रोपॉलिटन में भी है और तहसील में भी है। हमने ये जो मेरी यूसीज अब शामिल हुई हैं तो हमने ये अब एक फोकल पर्सन हमने आपस में बनाए हैं। हमारी कल मीटिंग होगी, हम एक पूरा मास्टर प्लान बना के जब वज़ीर आला साहब मुल्तान तशरीफ़ ला रहे हैं वो उनसे हमने अनाउंस कराना है कि जो नई यूसीज मेट्रोपॉलिटन में शामिल हुई हैं उसका भी फ़ंड भी दें और उसके लिए सेंट्री वर्कर और वो भी रक्शे या जो भी है काम, और इसके साथ साथ तहसील कौंसिल के लिए भी हमने मुझे जो है ना एक पैकेज बनाना है और इंशाअल्लाह वज़ीर आला जब आएंगे ये चीज़ें हमें दे जाएंगे। मुल्तान पैकेज में इस हल्के के लिए कोई खुशखबरी है? जी, इसके लिए बहुत खुशखबरी है कि मुल्तान पैकेज जो हमें 1 अरब रुपए का दिया जा रहा है, इससे मेरे पूरे हलके की जितनी 15 यूनिट काउंसिल या 16 उसमें मेरा ख्याल है कोई काम नहीं बचेगा। मैं अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद करता हूँ कि मैं इन लोगों से सुरखरू होऊंगा। उसमें स्कूल भी अपग्रेड होंगे, उसमें डिस्पेंसरीज भी बनेंगी, उसमें मैंने ये सारा अपना मास्टर प्लान बना के जमा करा दिया और इंशाअल्लाह वज़ीर आला के इसका अनाउंस करेंगे। आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि हल्का PP 212 में जो इस हवाले से तरक्याती काम किए जा रहे हैं, जो वर्किंग जारी है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA मलिक सलीम लाबर ने इस हवाले से बताया कि आने वाले दिनों में यहाँ पर मज़ीद तरक्याती कामों के हवाले से जो मनसूबे हैं उन पर काम किया जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ पर जो वादे किए गए हैं, जो इस हवाले से वर्किंग की जा रही है, उसके नतायज जल्द आवाम भी देखेंगे और आवाम की ज़िंदगियों में भी जल्द आसानी होगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान यासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।